Again, we need to look at this. Now we have covered the pneumatic part. Okay. Now we have this lifting device. Just let me tell you about the mechanical and the energy aspect. You will draw the mechanic EMI diagram for this also. This cylinder will shift and this spool will push the gear into the chute. Okay, so material is not transferring, only energy is going to get transferred from the cylinder to the lifting device. Okay, this is a lifting device. The gears are the material and that will be transferred from the lifting device to the chute. Okay, this is a chute and this is a gate. Okay, so your material is going to transfer from the lifting device to the chute to the gate. Now one energy it will get from this lifting device. Now you can see there is one proximity sensor, this one. This is a sensor. There is one gear sensor. Okay. And there is one this proximity sensor, which is a part of your lifting device. Okay. And this is your DC motor, and there are thread in the system which moves this up and down and circulate it accordingly. Okay, so for lifting device, you just have a brief look towards it. Lifting device will get energy from the cylinder. Okay, just focus on this lifting device. It will get energy from the cylinder. It will get energy from the DC motor, but not directly from the DC motor. It will be transferring that rotation power into translation power through thread, and DC motor will be getting your some kind of energy. So your power or energy from electrical form to the DC motor through the thread will come to the lifting device. Okay, and the lifting device will give information to few sensors. And what are those sensors? These two proximity sensors and this gear present sensor. Okay, and these sensors are going to give information to the PLC. Okay, and that PLC will again give information to the motor, whether this motor will run or not. Okay, so motor needs that when it need to be stopped, when it need to be moving, it requires that information. Who will give that information to it? PLC will give. How will PLC give it? It will give through a logic. And how it will sense that it has to work through a logic? Through these sensors. So information from these sensors will be given to the PLC, and to this sensor the information will be given by lifting device. Okay, so yeah, now you know that material is going to move from the lifting device to the chute, but you only need to focus on this particular lifting device only. Now you have to draw the EMI for lifting device. I'm again repeating the process. You just need to focus on lifting device only. Okay, again I am telling you, there is material inside which is your gear. This gear will be moved from this particular station to the chute when energy is transferred from the piston or from the cylinder to this lifting device. Okay, so cylinder is going to give the energy to it. And from where else it is going to get energy? It is going to get energy through this Acme thread, this thread which will rotate and lift this particular device, and this thread will get energy from the DC motor, and that DC motor will get an electrical energy, but it needs some information. Those information will be given by PLC, and for PLC to give up information, it will develop a logic and it will require a certain
input of information. That input of information will be given by these sensors. There are 3 sensors, and these sensors will get information from the lifting device. I am repeating it once more. Lifting device will get power input from the cylinder, from the DC motor through thread. Okay, and DC motor is going to get electrical energy, but DC motors have contactors, right? So these contactors will get an information that whether DC motor should start or not. Okay, and that will be given by PLC. Okay, and that PLC will get it and give this particular information by turning an input into by some logic, and it needs some input for that. And who will give that input? These 3 sensors, and these 3 sensors will get input from the lifting device. You just draw the diagram only for the lifting device and do the things associated. I am adding one more thing, that information to the DC motor whether to start or not will come through a contactor. So contactor will get information from PLC and give it to DC. I need answer on WhatsApp. Lifting device get the energy from the cylinder and DC motor both. See, lifting device, these gears will be shifted from the lifting device to the chute. How they will be shifted? When this spool is going to shift this, when this spool is going to shift this plate and these gears into the chute. Okay, so it is going to get the energy. Just wait a minute. I'll get it. Hello? आलोक सर ड्रिल का कुछ करवा दो, मेरी क्लास चल रही है, इम्पोर्टेंट। सर सुबह के सेशन में यहाँ पे कर दिया जाए। आपको भी आवाज सुनाई दे रही है, इस आवाज में आपको सुनाई नहीं दे रहा तो कैसे? क्लास एम आई ऑडिबल? थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा इस क्लास में, फिर भी मैं एड्रेस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब है, आपने कहा कि लिफ्टिंग डिवाइस गेट द एनर्जी फ्रॉम द सिलेंडर एंड डीसी मोटर को। यस, सिलेंडर को वो स्पूल से पुश मिलेगा ताकि गियर जो है वो मूव हो जाए शूट की तरफ, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, मटेरियल तो केवल गियर है, तो मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है ना, और डीसी मोटर तो वैसे भी पावर सप्लाई कर रहा है, लेकिन डीसी मोटर रोटेट कर रहा है किसको? थ्रेड को, और थ्रेड से जो लिफ्टिंग डिवाइस है उसको मिल रहा है। अच्छा, 3 आंसर्स आप ही गए।
शुभम पार्शियली करेक्ट। शुभम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सिलेंडर से मटेरियल तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। स्पूल जो जा रहा है वो मटेरियल को शिफ्ट कर रहा है लिफ्टिंग डिवाइस से शूट की तरफ, और स्पूल तो वापस आ जाएगा। वो तो एनर्जी ट्रांसफर ही देगा ना केवल। यस सर। ठीक है ना। यस और आपने केवल सेंसर के लिए दो इंफॉर्मेशन बनाई है, जबकि तीन सेंसर लगे हैं। आप देखो प्रॉक्सिमिटी, तीन सेंसर, दो प्रॉक्सिमिटी है और एक गियर प्रेजेंट सेंसर है ना। यस सर। सॉरी गाइस, ये आज मुझे बोलने नहीं देगा। सेंसर भी यहाँ पे तीन लगे हैं, और आपने लिफ्टिंग डिवाइस से शुभम शूट को केवल एनर्जी दी है, जबकि मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है, तो हम चैट बॉक्स पे ही कम्युनिकेट करेंगे अभी थोड़ी देर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके, तो हम चैट बॉक्स पे ही करेंगे। मैं हर एक से इंडिविजुअली उसके सोल्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई वन बाय वन कर दो। ओके। मैंने शुभम से क्वेश्चंस तो पूछ लिया, अब मैं ऋतिक से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ।
आदर्श वो मटेरियल को शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो जो न्यूमेटिक एनर्जी थी उस न्यूमेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करके वो गियर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी के टाइप को वो चेंज नहीं कर रहा, बस एनर्जी के फ्लो को डेविएट कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो वो एक अलग से एनर्जी दे रहा है ना। सर वो सेंसर जो पिस्टन का वो है, पिस्टन रहेगा, उसको नहीं सेंस कर रहा है, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जस्ट कनेक्टेड है। नहीं, मैंने बोला ना, देखो यही है कि पिस्टन जब मूव कर रही है ना, तो उसके आगे एक स्पूल लगा हुआ है। वो स्पूल धक्का दे रहा है गियर्स को, यहाँ पे वो सेंस नहीं कर रहा। ओके सर। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने जो प्रोसेस बताया, आई थिंक कि मैंने या तो अच्छे से नहीं बताया या आप नहीं सुन पाए उस टाइम पे। मैं यही कह रहा था कि जो स्पूल है, स्पूल का मतलब ये होता है कि जो आपके न्यूमेटिक गियर के आगे एक रॉड लगी हुई है, उसके आगे आप कुछ ना कुछ लगा दोगे, पुशर टाइप की चीज, उसको आप स्पूल बोल देते हो, ठीक है ना। तो वो स्पूल जो है वो केवल धक्का देगा गियर्स को शूट की तरफ। ओके ओके, सर। भानु आई थिंक करेक्ट। भानु से कोई क्वेश्चन नहीं है। कल्पना, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे दी, लेकिन इंफॉर्मेशन आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देना भूल गए। मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देना आपको। हाँ, शुभम आपने जो दूसरा बनाया है ठीक बनाया है, गुड। बाकी लोगों ने भी काफी सही बनाया है। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एफर्ट है आपकी तरफ से। एंड हु इज दिस? सर इसमें कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे है, मतलब क्या वर्क कर रहा है? बेटा देखो, आपको मतलब आपने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, सब बहुत अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है। आपको रिले, कॉन्टेक्टर, एमसीबी, इनके बारे में पता है? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं ये चीज कवर कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें भी बहुत छोटी हैं। पता है कि रिले क्या होती है, कॉन्टेक्टर क्या होता है, नो सर। कहाँ पे रिले को यूज करते हैं, कहाँ पे सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं? मैं ना इसको नोट कर लेता हूँ अपनी डायरी में, ठीक है ना। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड आई विल गिव यू अ गुड सेशन अबाउट इट। फिलहाल मैं अभी ये बता दे रहा हूँ आपको कि कॉन्टेक्टर क्या कर रहा है, केवल इंफॉर्मेशन का फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। कॉन्टेक्टर क्या करेगा, देखिए क्या होता है ना, कॉन्टेक्टर के साथ ही रिले लगी होगी, ठीक है ना। कॉन्टेक्टर पे एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से पास कर रहा होगा क्या, पीएलसी तो केवल 24 वोल्ट ही देगा ना इंफॉर्मेशन में, उस 24 वोल्ट से डीसी थोड़ा ना चल पाएगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन गेन करके डीसी को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने के लिए जो स्विच को पावर चाहिए, वो भी अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज है। मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करने के लिए स्विच को जो पावर चाहिए होती है, वो पावर भी पीएलसी नहीं दे पाता, उसके लिए हमको अलग से कॉन्टेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्टेक्टर यूज होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा देता हूँ। आप मेरे से एक बार खुद भी पूछना कि एमसीबी, सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी, ठीक है, और कॉन्टेक्टर, रिले, इनमें डिफरेंस क्या है। पावर जो है, आप तो कहते हो कि 240 वोल्ट आपके पास आ गई, इंडस्ट्री के सॉकेट पॉइंट पे भी आपके पास सिंगल फेज सप्लाई भी होगी, 3 फेज सप्लाई भी होगी।
लेकिन वो सप्लाई आ कैसे रही है, पावर जनरेट कैसे हो रही है, क्या डिवाइसेस लगे हैं सेफ्टी के, आप कहाँ पे एमसीबी को लगाओगे, कहाँ पे एमसीसीबी को लगाओगे, कहाँ पे आप एयर सर्किट ब्रेकर लगाओगे, एयर सर्किट ब्रेकर कौन सी पावर के लिए लगाते हो, ये सारी चीजें मतलब मतलब एक बेसिक आइडिया अगर आप एक बार सुन भी लोगे ना कहानी की तरह कि हाँ ये होता है ये होता है, मैं आपको अगर बिना बोले भी ये कहानी बता दूंगा तब भी आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी और कहीं ना कहीं वो यूज आ जाएगी। ठीक है ना। कई बार क्या होता है ब्रेकडाउन के टाइम पे जीरो से पावर स्टार्ट करनी पड़ती है। मैं आपको, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ सबसे। मैं इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे, क्योंकि यूएई में जो आपके पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो बहुत अच्छी सप्लाई मिल जाती है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है ज्यादातर कि आपको इलेक्ट्रिक लाइन लगवानी है, वहाँ पे सेल्फ जनरेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे एक्सियल टरबाइन लगा देते हैं और वहाँ से पावर का इनपुट ले लेते हैं। ठीक है ना। तो एक बार जो एक्सियल टरबाइन थी उसमें ब्रेकडाउन आ गया था, पूरी लाइन की पावर चली गई थी और पूरी लाइन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा था। और उस टाइम पे मुझे इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं पता, आई एम नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, लेकिन तब भी मुझे वहां पे जाकर के लाइजनिंग करनी पड़ी थी इलेक्ट्रिकल के लोगों के साथ सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तब तक फ्लो नहीं आएगा, जब तक फ्लो नहीं आएगा तब तक प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो वही है कि आप अपना स्पैन बढ़ाओगे इस लेक्चर में, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछते रहोगे तो आपको अलग से कुछ ना कुछ मिलता जरूर रहेगा। तो मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। ठीक है ना। और आप लोग भी नोट करके रखना इसको, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो आप लोग मेरे पास आना, आप मेरे से पूछना सर आपने कमिट किया था कि ये पढ़ाओगे, आपने पढ़ाया नहीं। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं ये भी बता दूं आपको कि मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आपका एस्पेक्ट बढ़ाएगा। कल को आप अगर जनरली भी किसी के पास जाओगे तो एज अ टेक्निकल पर्सन इंडस्ट्री के किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको होगा। ठीक है ना। थैंक यू शुभम, ये क्वेश्चन आपने पूछा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है कि एनर्जी फ्लो कैसे होगा। अच्छा अब मुझे बताइए, जिस किट को आपने पहली बार देखा था, जिसको आप कह रहे थे बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्या वो इजी प्रोसेस है? यस और नो। क्या वो इतना इजी प्रोसेस है कि हाँ एक बार देख लिया और समझ में आ जाएगा? अगर किसी का नहीं आंसर आया ना तो मैं समझूंगा वो कह रहा है यस, और फिर मैं उससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछूंगा। फिर मैं अभी ये नोट कर लूंगा चैट बॉक्स से आंसर्स। यस भी आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर नहीं आया तो मैं यही समझूंगा। हाँ मतलब अब देखिए लर्निंग पाथ में यही है, जो चीज़ आपको आसान लग रही थी अब आपको वो टफ लगना शुरू हुई है, बट ट्रस्ट मी जब आप यहाँ से जाएंगे तब वो सिस्टम को आप अपने आप हैंडल करने के लिए कंपेटेबल होगे। मतलब अगर आपको किसी लाइन के पास भेज दिया जाए तो आप डरोगे नहीं कि अरे यार ये तो स्विच ऑफ हो गई अब करना क्या है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको पता होगा कि स्विच ऑफ होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या अप्रोच लगा के चलिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रोसेस के बारे में पता होगा। ओके, एंड यू विल बी वैल्यूड, जहां जाओगे आप ये वैल्यू तो आपको मिलेगी। ठीक है ना, भले ही आप डिजाइन में भी हो, बट अगर आपको ये छोटी छोटी नॉलेजेस पता है ना, क्योंकि जब मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में भी हैं या किसी भी चीज में है, करना तो चीज को इंटीग्रेट आपको प्रोसेस से ही है ना। आप छोटे लेवल पे हाई एंड टेक्नोलॉजी पे तो चले जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप मैनेजेरियल पोस्ट पे आने लग जाओगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है ना, कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। अभी तो मैं आपको सोच रहा हूँ आईएसओ स्टैंडर्ड भी बताऊं, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं वो आईएसओ स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा कि आप
क्योंकि इंडस्ट्री में आप लोगों को मेरे ख्याल से ना तो सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है, ना आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो है? नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अगर आप किसी भी इंडस्ट्री पर्सन से बोलोगे तो वो ये कहेगा यार सेफ्टी का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चीज़ें रहती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो अभी आप देखिए स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में इतना ज़्यादा काम उनके पास पड़ा। अभी अच्छा बताइए BS4 आया, BS5 आया है या BS6 आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में? शुभम आप इंडस्ट्री 4 में चले गए। BS6 आया है, हाँ ठीक है ना। अब BS6 में क्या हुआ है, जरा सा एक फ्यूल का जो क्वालिटी है, जो नंबर है उसका उसको चेंज किया गया है पोल्यूशन के अकॉर्डिंग। उसकी वजह से पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। आप किसी भी ऑटोमोबाइल वाले से पूछोगे यार तू इतना स्ट्रेस में क्यों है, तो वो यही कहेगा यार ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है BS6 का, इसीलिए हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे एक स्टैंडर्ड्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे ताकि आप यहाँ से जब निकलो तो एक होल सोल पैकेज लेकर के जाओ। ठीक है ना। यहाँ से आप निकलोगे तो आप किंग ऑफ नन तो रहोगे लेकिन जैक ऑफ एवरीथिंग हो जाओगे। ठीक है ना। किंग ऑफ वन थिंग तो आप लोग हो ही जाओगे, एक चीज के किंग तो रहोगे आप एक लाइफ में। ठीक है ना। बट जैक ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एस्पेक्ट आपका बढ़ जाएगा और आप उस थॉट प्रोसेस से अलाइन हो जाओगे जिस थॉट प्रोसेस से इंडस्ट्री के लोग गुजरते हैं। ठीक है ना। तो मैंने ये क्वेश्चंस तो देख लिए। हमने लिफ्टिंग डिवाइस को कर लिया, न्यूमेटिक को कर लिया, कल हम ये शूट और गेट को भी कर लेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा मैं ये क्वेश्चंस को और फॉलो करता हूँ। आप मैंने शुभम तक देख लिया था इसको। वरुण PLC से कॉन्टेक्टर से इंफॉर्मेशन लेके DC मोटर, DC से थ्रेड, थ्रेड से लिफ्टिंग डिवाइस से शूट। ठीक है। एनर्जी सेंसर से आएगी। वरुण एनर्जी तीनों सेंसर्स को देनी है आपको, एक सिंगल सेंसर को नहीं देनी है। ठीक है ना। और बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। ये कौन है? अपराजिता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सेंसर को दी है, ठीक है। सेंसर से आपने इंफॉर्मेशन PLC को दी है, ठीक है। PLC से इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर को दी है, कॉन्ट्रैक्टर से बेटा इंफॉर्मेशन देनी थी DC मोटर को। ठीक है ना। तो वो DC मोटर को आपने दी है और DC मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे दी है, ठीक है। फिर DC से थ्रेड, थ्रेड से लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। और मटेरियल को आपने शिफ्ट किया शूट से, ठीक है। नयन अरोरा, लिफ्टिंग डिवाइस से आपने मटेरियल को शिफ्ट किया शूट पे, न्यूमेटिक से आपने एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने मोटर को दे दी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर से आपने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। लिफ्टिंग डिवाइस से इंफॉर्मेशन दे दी आपने और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने तीनों को दे दी। गुड, ठीक है, ठीक है। आप कौन है भाई? आपके नाम के आगे 2 स्माइली लगे हैं, मुझे पता नहीं आप, लेकिन मैं बता देता हूँ तभी। ठीक है। ये कौन है? अंकुश सिंह। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सेंसर को दिया है, ठीक है। न्यूमेटिक सिलेंडर से आपने लिफ्टिंग डिवाइस को एनर्जी दी है, ठीक है। शूट से आपने मटेरियल ट्रांसफर करा दिया, PLC, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर, मोटर को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक, ठीक। अंकुश का भी ठीक है। नंदिनी राज, आपने इंफॉर्मेशन लाइन सॉलिड बना दी, सारी की सारी लाइनें सॉलिड बनाई है बेटा,
सुनिधि, आपने इंफॉर्मेशन बनाई है, कॉन्ट्रैक्टर ठीक बनाया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सही बनाई है, थ्रेड ठीक बनाई है, लिफ्टिंग डिवाइस ठीक बनाया है, शूट एनर्जी एनर्जी इलेक्ट्रिकल ठीक है आपका। सुनिधि से ना आपका ठीक है। खुश खुश का खुश आपने कॉन्ट्रैक्टर मोटर ठीक है, सेंसर ठीक है, शूट ठीक है, थ्रेड ठीक है, सिलेंडर सोर्स ठीक है आपका। पीएलसी से कॉन्ट्रैक्टर पे गया है, डीसी मोटर पे गया है, थ्रेड पे गया है, लिफ्टिंग डिवाइस पे गया है, शूट पे एनर्जी है, लिफ्टिंग डिवाइस से आपने सेंसर को सॉलिड लाइन दे दी है बेटा कुछ जगह पे, वहाँ पे आपने एक को तो दे दी लेकिन बाकी को जल्दबाजी में सॉलिड लाइन बना दिया है। ओके, फिर इसके बाद पीएलसी, सेंसर, लिफ्टिंग डिवाइस, शूट, और ये कौन है? अभय। अभय आपने अच्छा ठीक करके बना दिया, ठीक है। थ्रेड, वैसे प्रोसेस को देखते हुए अभय मुझे आपका ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यस नयन, क्लास कल 10 बजे से क्लास होगी, मैंने आपको पहले भी कन्वे कर दिया है, मुझे थोड़ी ऑक्यूपेंसी है, तो उसकी वजह से कल सुबह 10 बजे मैं क्लास लूँगा, 10 से 1 का सेशन रखेंगे। Are you all okay with that? Are you all aligned? Please respond on the chat box. Okay. Okay. So what I was trying to convey is कि अभय ने थोड़ा सा इसमें एक बहुत अच्छा इनपुट दिया है। अभय के कहने का मतलब यह है कि जो एक तीसरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो चैट बॉक्स पे लिखता है।
अबे आप कंफर्म करना, आप यही कहना चाह रहे हो ना? अबे क्लास, व्हाट इज योर ओपिनियन? आई वेलकम दिस थॉट। मुझे काफी अच्छा लगा ये कि आप एटलीस्ट प्रोसेस को देख रहे हो। क्लास, आप इसको रिस्पॉन्ड करोगे तभी छुट्टी मिलेगी। सबकी अटेंडेंस तो लग चुकी है, बस इस पे रिस्पॉन्ड कर दो। यस शुभम, थ्रेड से एनर्जी पास होगी, लेकिन वो एनर्जी पास होगी आपकी डीसी मोटर से। जो एनर्जी आ रही है वो थ्रेड किसको देगा? लिफ्टिंग डिवाइस को। ठीक है, लेकिन थ्रेड की कोई पोजीशन है जिसको आपका तीसरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस कर रहा है। आप वो देख रहे हो, वो पावर तो ट्रांसमिट कर रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है थ्रेड? सेंसर को एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जैसे कि न्यूमेटिक सिलेंडर करता है। पावर तो ट्रांसफर करी थी उसने स्पूल से, लेकिन उसने एक चीज और करी थी। क्या किया था उसने? उसने अपनी अंदर की जो पिस्टन है उससे पोजीशन को भी बताया था। इंफॉर्मेशन उसने सेंसर को दी थी। ठीक है शुभम, कंफर्म करो व्हाट थ्रेड विल डू। देखिए, थ्रेड जो है, थ्रेड अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करेगा। देखिए, थ्रेड तो यहाँ पे एक वो बना हुआ है, या थ्रेड पे आप ये देख रहे हो ना, ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे सेंस करेगा तो वो एक इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है ना? इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे ये थ्रेड की एक पोजीशन है। यहाँ पे एक आप कह सकते हो हॉइस्ट लगा है, और वो हॉइस्ट जो है वो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा ये सेंसर उसको सेंस करेगा। तो एक मायने में अगर आप बोलो तो ये भी एक ऑप्शन है। मैं इस पूरे को लिफ्टिंग डिवाइस मानता तो मैं ये डायग्राम ठीक कर सकता था, लेकिन और ज्यादा स्पेसिफिक आंसर मिल गया मुझे। और इस चीज को समझने की जरूरत क्यों ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये जो सेंसर है, जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा तब तक सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। इनिशियल कंडीशन ही दे दी मैंने, क्योंकि हर सिस्टम में जब आप एक लैडर लॉजिक बनाते हो तो उसमें इनिशियल कंडीशन होनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गियर प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी ये उठेगा। शुभम कुमार, यस, यही है कि वो यहाँ पे एक उसके हॉइस्ट लगा है जिससे वो अपनी पोजीशन भी बता रहा है और अपने थ्रेड से वो एनर्जी को भी पास कर रहा है, जैसा कि न्यूमेटिक सिलेंडर करता है। न्यूमेटिक सिलेंडर ने, आपने देखा कि न्यूमेटिक एनर्जी को ट्रांसफर भी किया था, क्योंकि वो स्पूल ने न्यूमेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल से उसने गियर को एनर्जी दी लिफ्टिंग डिवाइस पे। सर फिर डायग्राम में एनर्जी को दिखाएं। शुभम, क्या बोला आपने? फिर से रिपीट करना प्लीज। सर जो एनर्जी डायग्राम बनाया है सर, उसमें इंफॉर्मेशन को शो करेंगे कि एनर्जी को शो करेंगे? जो आपने एनर्जी डायग्राम बनाया है शुभम, उसमें आप डीसी मोटर से एनर्जी का फ्लो दिखाओगे। डीसी मोटर से एनर्जी थ्रेड को जाएगी, थ्रेड से एनर्जी लिफ्टिंग डिवाइस को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन थ्रेड से जो जाएगी वो किसको जाएगी? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है ना? थ्रेड बनाओगे आप तो थ्रेड से क्या होगा? थ्रेड बीच में होगा एनर्जी लाइन के, किसके? डीसी और लिफ्टिंग डिवाइस के बीच। मतलब डीसी से आपकी एनर्जी थ्रेड पे जाएगी और थ्रेड से एनर्जी जो जाएगी लिफ्टिंग डिवाइस पे। लेकिन इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी?
इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रेड से प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से पीएलसी को। समझ रहे हो ना? आप एक बार जो अभय ने डायग्राम बनाया उसको देखो, ठीक है ना? और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप एक दूसरे का डायग्राम देखो, जितने ज्यादा आप प्रोसेस को देखते जाओगे उतने ज्यादा आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना? सो क्लास लेट अस कंक्लूड फॉर टुडे। आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही है और 10 मिनट ही बचे हैं, अब आप लोगों को भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे आई थिंक। शैल वी कंक्लूड नाउ? Okay, okay. Thank you very much. I'll meet you tomorrow at 10 a.m. Okay?